Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Last time we discussed the basic concept of mathematical induction and we solved different questions and also done some example. Question 2 is solved in last video lecture. Question 4, question number 5, question 7 and question number 9. These are assignment questions. You need to submit that assignment today 10th December 2020. Now the remaining question of exercise 7.1 are 11, 12, part number 2, question number 14 and question number 15. We are only discussing the questions from the accelerated course. So in this video lecture we will discuss question number 11, question number 12, question number 14 and question number 15. In question number 11 you see that this is the combination of 2 and 2, 2 combination, 3 combination, 4 combination and so on up to n2 combination, which is equal to n plus 1 3 combination, where n is greater than or equal to 2. So these questions contains or involve the concept of combination. So before to discuss question number 11, we are going to discuss the concept of combination, which is related to the concept of permutation, and permutation actually involves factorial. So we start from the factorial, then we discuss briefly inshallah permutation and then combination, and then we switch to the exercise 7.1, the question 11 and the rest of the questions. So we are going to discuss permutation. So for the permutation and combination we'll discuss factorial. Now what is factorial? N factorial, this is the representation of n factorial. What this factorial represent? It is the product of all positive integer from n down through 1. For example, you have 4 factorial, so 4 factorial will be equal to 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1. 10 factorial, so you will start from 10 and down through 1, and there will be multiplication n between all these integers. So 10 factorial is equal to 10 multiplied by 9 multiplied by 8 multiplied by 7 and so on up to multiplied by 1. Remember, 0 factorial is always equal to 1. Okay, so this is the factorial representation. Factorial notation, if n is a positive integer, the notation this read as n factorial is the product of all positive integers from n down through 1. So that is the concept of the factorial. Okay, after that we are going to discuss permutation. What is permutation? It is an order arrangement. Now how you can perform this order arrangement in the given number of objects? So the definition is, permutation is an order arrangement of finite number of elements taken some or all at a time is called permutation of those elements. आसान अल्फाज में इसका मतलब यही है कि लेट से आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं. कंसिडरिंग लेट से मेरे पास 3 इमेजेस हैं. पर्सन ए, पर्सन बी का इमेज है आपके पास और पर्सन सी का आपके पास इमेज है. अब आपने क्या करना है, इन इमेजेस को आप डिफरेंट अरेंजमेंट्स में, डिफरेंट तरतीब में, अरेंजमेंट्स में आप इनको अरेंज कर सकते हैं. तो वो कितनी पॉसिबल वेज होंगी कि इन 3 इमेजेस को मैं अरेंज कर लूँ. मीन आप इन 3 इमेजेस को दीवार में कितनी पैटर्न्स के साथ आप लगा सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास है 3. सो n फॉर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. अब इनमें से आपने लेने हैं, आप तीनों के तीनों भी ले सकते हैं. जो गिवन ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें से जो आप ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो तमाम भी ले सकते हैं और उससे कम भी आप ले सकते हैं. तो उसको हम डिनोट करते हैं r से, और यहाँ पे लेट से मैं ले लेता हूँ r इक्वल टू 2. 2 ऑब्जेक्ट्स मीन 2 इमेजेस इसमें से मैं ले लेता हूँ. सही है. तो फिर यहाँ पे इन 3 ऑब्जेक्ट्स को आप कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स में प्लेस कर सकते हैं व्हेन यू टेक 2 इमेजेस आउट ऑफ दीज 3. तो
और यहाँ पे ऑर्डर भी ज़रूरी है क्योंकि आपके पास वी आर डिस्कसिंग परमुटेशन, तो परमुटेशन में ऑर्डर आपके पास इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन आपके पास ये है, एन फी आर मीन एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, आर आपके पास वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपने ले लिए हैं, तो ये बराबर होगा एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ एन की जगह पे 3, आर की जगह पे 2, सो दिस इज 3 फैक्टोरियल, दिस इज 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल बराबर होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और आपका 3 माइनस 1 फैक्टोरियल मीन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो इससे आ जाएगा 6। सो यहाँ से ये आपके पास जो परमुटेशन का फार्मूला है ये आपको देता है कि अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से आप 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें तो इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को आप 6 पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकते हैं। मीन ये 3 तस्वीरें 6 डिफरेंट पॉसिबल वेज में आपके पास अरेंज हो सकती हैं, और वो इसी तरह होगा। ये आपके पास ए बी सी मीन पर्सन ए बी सी, ऐसे भी आप इमेजेस कर सकते हैं, ए सी बी ऐसे भी आप कर सकते हैं, सी ए बी ये अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है, सी बी ए ये अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है, बी सी ए ये अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है, और बी ए सी ये अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है। तो आप देख लें 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज द 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स आप 3 images when you take 2 from them। तो यहाँ पे आपके पास ये कहलाता है परमुटेशन। अगर आपके पास n आपका 3 है, ये 3 images हैं, r को आप ले ले 1, तो n फी r ये आपके पास बराबर होगा n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये आपके पास क्या होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इससे आ जाएगा ऊपर 6 और नीचे 2 फैक्टोरियल मीन 2 के बराबर, तो इससे आएगा 3। तो ये अब आपने अगर r को 1 लिया है तो 3 पॉसिबल अरेंजमेंट्स में आप इन तीनों फैक्टर्स को अरेंज कर सकते हैं, और वो आपके पास इसी तरह होगा ए बी सी, फिर इनके अलावा आपके पास होगा ए सी बी, फिर आपके पास होगा सी ए बी। मीन आपके पास ये दोनों यहाँ फिक्स है, ये सी को आप लेफ्ट साइड राइट साइड पे है तो फिर इन बिटवीन, और फिर आपके पास ये सी जो ऑब्जेक्ट एक आपने लेट से लिया हुआ है, आर आपका 1 है तो तीनों में से एक आपने लिया है, तो वो आप उसकी प्लेस आप चेंज करते हो, तो इसमें एक स्पेशल किस्म की अरेंजमेंट्स आपको दिखाई देती हैं। तो दीज आर द 3 पॉसिबल वेज टू अरेंज दीज 3 images when you take r equal to 1 मीन ऑब्जेक्ट्स मीन इनमें से आप एक इमेज को ले लेते हो तो उसकी प्लेस आप चेंज करते हो, रिमेनिंग 2 आपके पास इस खास ऑर्डर के अंदर होती है। तो दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। परमुटेशन में ऑर्डर आपके पास नेसेसरी होती है, और ये परमुटेशन का फार्मूला है। इनमें फैक्टोरियल इन्वॉल्व है, तो पहले हमने फैक्टोरियल की डिस्कशन की। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आर आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करते हैं ये तमाम ऑब्जेक्ट्स के बराबर भी हो सकते हैं और उनसे कम भी आप ले सकते हैं, तो ये आपके पास यही होगा। ओके, जब आप तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स ले लें, एन फी एन मीन तमाम ऑब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करते तो वो ये बराबर होगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। तो उस केस में क्योंकि n माइनस एन 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होगा तो ये बराबर आएगा n फैक्टोरियल, तो इस केस में ये होगा n फैक्टोरियल। क्लियर? इसके बाद है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। So far we have been concerned with the permutation which are the order arrangements of the elements of a set। उसमें एक खास किस्म की अरेंजमेंट ऑर्डर होता था, यहाँ पे हम ऑर्डर में इंटरेस्टेड नहीं होते। नाउ वी फोकस और डिस्कशन ऑन द अरेंजमेंट्स इन विच ऑर्डर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ सबसेट ऑफ अ सेट। आप सबको पता है कि सेट के अंदर ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर आप एक सेट ले ले लेट से एस और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, तो अगर इसको आप लिख ले 2 1 3 या इसको आप लिख ले 3 2 1, so all these 3 are the same sets because there is no importance of order in the sets। so sets के अंदर ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो कम्बिनेशन में आपके पास ऐसी अरेंजमेंट्स जिनमें आपके पास ऑर्डर इम्पोर्टेंस नहीं होता, तो वो एक्चुअली हमारे पास सेट के अंदर जब हम सबसेट सपोज ले लेते हैं तो उनमें कोई इम्पोर्टेंस ऑर्डर की नहीं होती। तो यहाँ अगर आप देखें तो
ये हमारे पास होगा, अगर आप एक सेट कंसिडर कर ले डिफिनीशन से पहले, यहाँ हम आते हैं कम्बिनेशन को समझने के लिए आप एक एग्ज़ाम्पल ले लें। एग्ज़ाम्पल आपका है एस के अंदर आप एक सेट है 4 ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, इनमें से आप 3 ऑब्जेक्ट्स ले लें। मीन इसके वो सबसेट्स जिनमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट मीन डिफरेंट एलिमेंट वो आपके पास 3 हो, तो ये आपके पास होगा ना C4 3, क्योंकि आपकी इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, 3 आप ले ले। 3 का मतलब ये है कि इस सेट के वो सबसेट्स जिनमें 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो, तो वो कितने सबसेट्स आपको मिलेंगे, कितने सबसेट्स, सो वो कम्बिनेशन से आपको मालूम होगा। क्योंकि सेट के अंदर तो आपके पास कोई ऑर्डर की इंपॉर्टेंस ही नहीं होती, तो परमुटेशन की बजाय हम कम्बिनेशन, और कम्बिनेशन के लिए ये फार्मूला है NCR, और वो बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये इसके बराबर होता है। तो ये होगा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल अपनी जगह पे और 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो ये इसके साथ कैंसिल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सेट ये है और इनमें से आप 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के सबसेट लेते हैं, तो उनकी तादाद 4 होगी, और वो आपके पास ये होंगे। एक सबसेट आपका ये होगा, एक सबसेट आपके पास ये होगा, एक सबसेट आपका ये होगा, और एक सबसेट आपका ये होगा। तो यहाँ पे आप देख लें 1 2 3 4, तो ये 4 सबसेट्स आपके पास आएंगे। तो कम्बिनेशन आपको क्या देता है, कम्बिनेशन आपके पास अगर किसी सेट में n ऑब्जेक्ट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, और उनमें से आप ले लेते हो, तो उस सेट के वो तमाम सबसेट्स जिनमें r डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, वो तमाम सेट्स की जो तादाद होगी वो आपको कम्बिनेशन से मिलेगा। और ऑर्डर के अंदर सेट के अंदर ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, सो दैट्स वाई फॉर दैट वी आर यूजिंग द कम्बिनेशन। तो ये कम्बिनेशन का फार्मूला है। और इनके साथ साथ ये याद रख लें कि कम्बिनेशन NCR मीन n आपका टोटल जो सेट के अंदर है, r आप ले लेते हैं, तो ये हम a से भी डिनोट करते हैं। दिस इज आल्सो कम्बिनेशन के लिए ये भी यूज़ होता है, और ये फार्मूला है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये बात याद रख लें कि n 0 फैक्टोरियल जो है ये बराबर होगा आपके पास 1 के। इनके अलावा दूसरी बात आपके पास जो होगा n फैक्टोरियल जो है सॉरी n का कम्बिनेशन 1 के बराबर होगा। तीसरी बात कि n1 का जो कम्बिनेशन होगा वो n के बराबर। और चौथी एक इम्पोर्टेंट बात है कि NR का कम्बिनेशन NCR प्लस NCR माइनस 1, यहाँ R है, यहाँ R माइनस 1 है, मीन तमाम n है उनमें से आप R लेते हो, यहाँ तमाम ऑब्जेक्ट्स n हैं उनमें से आप R माइनस 1 लेते हो, तो ये बराबर होगा n प्लस 1 R के। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, इनको हम एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करेंगे। और ये सारा कम्बिनेशन और परमुटेशन का जो कंसेप्ट है ये चैप्टर नंबर 6 में फिर इंशाल्लाह रिवाइज होगा। ओके, तो यहाँ आप देख लें कम्बिनेशन की डिफिनीशन, ऑर्डर उसमें इम्पोर्टेंट नहीं होती, ये बात काइंडली याद रख ले कम्बिनेशन में। सो लेट S बी अ सेट containing n elements and suppose R is the positive integer such that R is less than or equal to n, then any subset of S containing R distinct elements is called the combination of n elements taken R at a time। तो वही बात यहाँ देख ले, S आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, इनमें से फाइंड द नंबर ऑफ द कम्बिनेशन बाय टेकिंग 3 लेटर्स एट अ टाइम। तो कितने कम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, तो यहाँ कम्बिनेशन का मतलब ये है कि कितने इसके सबसेट्स होंगे जिनमें 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। तो वो आपके पास ये जो आप 4C3 कहते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स टोटल ऑब्जेक्ट्स n यहाँ 4 हैं, और फाइंड द नंबर ऑफ कम्बिनेशन बाय टेकिंग 3, R आप 3 के बराबर लेते हो। तो यहाँ 3 का मतलब ये होगा कि इस सेट के कितने डिस्टिंक्ट
सबसेट्स होंगे जिनमें एलिमेंट्स भी आपके पास डिस्टेंस होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तो वो 4 के बराबर होंगे। ये आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया, और वो 4 सबसेट्स आपके पास ये होंगे। तो और ये कम्बिनेशन के लिए ये चीज़ ये आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखने। कम्बिनेशन को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, एन का कम्बिनेशन 1 के बराबर होगा, N0 का कम्बिनेशन 1 के बराबर होगा, N1 का कम्बिनेशन n के बराबर होगा, और NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर होगा n+1 CR के। NCR मीन NR कम्बिनेशन, तो ये 2 तो ये आपके पास असल में क्या होगा, ये 1 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे NN का कम्बिनेशन 1 के बराबर। इसको आप इस रिजल्ट से प्रूफ भी कर सकते हैं, इस रिजल्ट से ये आप प्रूफ भी कर सकते हैं। यहाँ देख लें, अगर आप देख लेना NN, तो ये आपके पास ये और ये नोटेशन सेम है। तो ये देखिए n फैक्टोरियल, यहाँ पे आपके पास होगा n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल। तो अब देखिए n फैक्टोरियल के साथ ख़त्म, तो ऊपर 1 रह जाएगा, और ये होगा 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल भी 1 है, तो 1/1 आपको 1 मिल जाएगा। तो n आपके पास 1 के बराबर होता है। तो ये आप इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये आप मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू आपने इस रिजल्ट को यूज़ करना है। तो इस रिजल्ट के हर एक टर्म में आपके पास कम्बिनेशन इन्वॉल्व है, तो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन द कम्बिनेशन एंड परमुटेशन, और उनमें फैक्टोरियल इन्वॉल्व था, तो इसको इसी वजह से एक्सप्लेन कर दिया। तो 7.1 एस्टेब्लिश द फार्मूलाज गिवन बिलो बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू इसको आपने प्रूव करना है, क्योंकि n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 की तमाम जो इंटीजर्स होंगे उनके लिए ये लेफ्ट और राइट इक्वल होगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम इन की तमाम वैल्यूज़ तो 1/1 फुट नहीं कर सकते, इट रिक्वायर्स टू मैनी कैलकुलेशंस, और ये हम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को अगर मैं रिवाइज करवा दूं तो वो आपका ये है, अगर कोई फार्मूला आपके पास गिवन है उसको आपने प्रूफ करना है, तो ये प्रायर रिजल्ट आपका तब सही होगा अगर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आपके पास वही रिजल्ट n=1 और n=k+1 के लिए सही साबित हो जाए। बट व्हेन यू आर प्रूविंग दैट it is true for n=k+1, you need to suppose that the result is true for n=k. So that is all about the mathematical induction, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को मैंने अब साबित करना है कि ये n=2 के लिए ये यहाँ पे जर्नल या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल आप मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले n=1 के लिए ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। तो यहाँ आप देख लें, n की जगह मैंने 2 पुट किया, तो यहाँ पे 2 पहला टर्म, तो 2 आपको पता है कम्बिनेशन से ये 1 के बराबर होगा, और यहाँ आपने 2 पुट किया तो 2 + 1 और ये 3, तो ये 3 का कम्बिनेशन भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि n का जो कम्बिनेशन होता है वो 1 के बराबर। तो यू क्लियरली सी दैट द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड इज ट्रू फॉर n=1, तो n=1 के लिए आपका रिजल्ट सही साबित हो गया। अब आपने n=k+1 के लिए रिजल्ट को सही साबित करना है, बट जब आप n=k+1 के रिजल्ट साबित कर रहे हैं तो वहाँ पे n=k के लिए आपने सपोज करना होगा। तो यहाँ आप देख लें, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 2 में हम सपोज कर देते हैं कि द गिवन रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n=k। यहाँ पे जस्ट इस n की जगह पे आप k पुट कर ले और इस रिजल्ट को आप सही मान लें, आप देख सकते हैं। अब ये जो आपकी सपोजिशन है जिसको हम इंडक्टिव हाइपोथेसिस कहते हैं, इसको हमने यूज़ करना है व्हेन यू आर प्रूविंग दैट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n=k+1। तो रिजल्ट इन ट्रू फॉर n=k+1 का मतलब ये है कि यहाँ k+1 और यहाँ k+1, तो ये k+2 हो जाएगा। तो इसको आपने प्रूफ करना है बाय यूजिंग योर इंडक्टिव हाइपोथेसिस। तो आपकी इंडक्टिव हाइपोथेसिस का जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आखिरी टर्म k+2 है, और आपकी रिक्वायर्ड का आखिरी टर्म k+1 2 का कम्बिनेशन है। तो आप दोनों अतराफ में अपनी सपोजिशन में k+1 और 2 की कम्बिनेशन को दोनों अतराफ में ऐड कर लें, तो आपका रिक्वायर्ड में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो यहाँ से मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड को आप देख लें, राइट हैंड साइड ये है आपकी सपोजिशन का, इसके साथ ये ऐड हो जाएगा, तो ये इसी तरह बनेगा। अब इन दोनों कम्बिनेशन से आपने ये लेके आना है। तो इनके लिए ये देखिए, इनको मैं k+1c3 प्लस इसको k+1c2 लिख सकता हूँ। तो आपको पता है कि हमारे पास NCR प्लस NCR-1 बराबर होता है n+1 CR के। तो यहाँ n k+1 है और R आपका 3 है,
तो यहाँ देख लेना r-1 तो ये 2 हो जाएगा और ये n है, तो ये बराबर होगा n+1 मीन ये आपके पास इस रिजल्ट के मुताबिक हो जाएगा k+2 और यहाँ पे 3, तो k+2 C3 मीन k+2 3 combination and that is the required right hand side of your required result. So it means that the given result is true for n equal to k+1 और अगर आपका n equal to 1 के लिए भी रिजल्ट ट्रू है और n equal to k+1 के लिए रिजल्ट आपका ट्रू है, when you assume that the result is true for n equal to k, so then you can say that the result will be true for all values of n greater than or equal to 2. तो ये आपके पास वही रिजल्ट, वही चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो ये है कि आपने शो करना है कि ये जो है ये आपका इंटीजर है n की तमाम वैल्यूज़ के लिए, n आपके पास होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो वो तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, किस किस नेचुरल नंबर के लिए इसकी कैलकुलेशन करके आपने साबित करना है कि ये इंटीजर होगा या नहीं होगा। तो वी यूज़ दी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। n इक्वल टू 1 के लिए आप देख लें, तो जब n इक्वल टू 1 के लिए हमने यहाँ देखा तो ये रिजल्ट 1 के बराबर था और 1 आपका इंटीजर, सो इट मीन्स दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू k के लिए आप सपोज करोगे कि रिजल्ट ट्रू है, तो n इक्वल टू k के लिए मैंने सपोज किया कि रिजल्ट ट्रू, सो इट मीन्स दैट दिस थिंग एज एन इंटीजर, क्योंकि वो तो आपने इंटीजर साबित करना है। फिर आपने साबित करना है कि n इक्वल टू k+1, जब n की जगह पे मैं k+1 को पुट कर लूँ, आप देख सकते हैं k+1 k, तो ये चीज़ जो आया है ना ये आपका इंटीजर होना चाहिए, इसको आपने साबित करना है। तो इसके लिए मैं ये ले लेता हूँ, आप देख लें ये चीज़ मैंने ली हुई, इसको मैंने इंटीजर साबित करना है। तो अगर इसको आपने इंटीजर साबित करना है तो ये याद रख लें आपने अपनी सपोजिशन को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं अब इसके साथ इसी तरह की कैलकुलेशन करूँगा जिसमें मेरे साथ ये सपोजिशन उनमें आ जाए, क्योंकि सपोजिशन आपने ऑलरेडी माना हुआ है कि ये इंटीजर हैं। तो यहाँ आप देख लें, यहाँ पर मैं 10 पावर k प्लस 1 की जगह पे 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, ये 9k -9 - 10 होगा। अब ये इस 10 को मैं 9 + 1 लिख रहा हूँ, फिर ये आपका 10 पावर k + 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 10 पावर k + 1 9k और -10 ये अलग कर ले, क्योंकि ये आपकी असल में सपोजिशन है, सपोजिशन को आप हमेशा यूज़ करोगे। तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये आपको पता है कि ये इंटीजर है बिकॉज इट इज़ फ्रॉम द सपोजिशन, ये हमारा इंटीजर है। तो अब ये सारा तब इंटीजर होगा जब ये दोनों इंटीजर हो जाए ना, तो इस चीज़ को आपने अब शो करना है कि ये इंटीजर है कि नहीं। अगर ये इंटीजर हो गया तो फिर आपके पास ये भी इंटीजर है, सपोजिशन से दोनों इंटीजर का सम इंटीजर होता है, तो ये इंटीजर हो जाएगा पार n इक्वल टू k + 1। सो आपके पास n इक्वल टू 1 के लिए भी ये रिजल्ट आपका इंटीजर है और n इक्वल टू k + 1 के लिए भी इंटीजर बन जाएगा बाय सपोजिंग दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो उस केस से आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गारंटी करता है कि ये आपके पास क्या होगा, रिजल्ट ट्रू होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि n इक्वल टू k, देखिए इस चीज़ को मैं अब वो करना चाहता हूँ, इंटीजर शो करना चाहता हूँ। तो जब मैंने k की जगह पे 1 पुट किया, क्योंकि k की वैल्यूज़ नेचुरल नंबर से होनी चाहिए, क्योंकि k आप रिप्लेस करते हुए n की जगह पे, तो ये मैंने 1 पुट किया तो आपके पास 11 आया। 2 अगर आप पुट कर लोगे तो 1 1 111 आता है। तो इस आर्डर में अगर आप देख लें k की कोई भी इंटीजर आप पुट करने से ये आपके पास हमेशा आएगा n इंटीजर। तो ये भी इंटीजर है, अब ये भी इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर का सम इंटीजर, तो इट मीन दैट दिस इज एन इंटीजर। तो ये आपके पास इंटीजर हो गया, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1। सो इट मीन्स दैट आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की जो प्रिंसिपल्स है वो सही है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गारंटी करता है कि देट मस्ट बी एन इंटीजर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, आपने शो करना है कि 5 फैक्टर होगा इसका, n की किसी भी वैल्यू के लिए 5 जो है n का फैक्टर होगा। फैक्टर मीन कि ये चीज़ जो है 5 के ऊपर डिविजिबल होगी, रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूव करना है, क्योंकि n इक्वल टू 1 2 3 कितने आप n की वैल्यूज पुट करोगे, बिकॉज n इज फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसको मैं Pn से डिनोट कर सकता हूँ। ये आपके पास एक पोलिनोमियल है जिसमें आप वेरिएबल को n रखते हैं, तो n की जगह पे 1 फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ से 5 आता है, तो 5 5 का फैक्टर होता है, क्योंकि 5 को आप 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हैं, तो 5 5 का फैक्टर होता है। तो इसके लिए आपका रिजल्ट मीन जब n 1 होता है
तो ये 5 का फैक्टर होता है, इससे 5 आता है तो 5 का फैक्टर होता है। सो दैट्स वाई द रिजल्ट इज 2 पावर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू k के लिए आप सपोज करोगे कि 5 इसका फैक्टर होगा, तो जहाँ आप k की n की जगह पे k रिप्लेस करोगे तो ये आप सपोज करोगे कि 5 इसका फैक्टर है। ये सपोजिशन हमने आगे यूज़ करना है। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपका ये रिजल्ट इसी तरह हो जाएगा, और अब आपने शो करना होगा कि 5 इसका फैक्टर है। मीन ये एक ऐसे एक्सप्रेशन के बराबर आना चाहिए जिसमें 5 एज अ होल आप कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 5 का फैक्टर होना चाहिए, तो मीन ये 5 के ऊपर डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए हमने ये ले लिया, और इनकी जब हमने कैलकुलेशन की इसी ऑर्डर में, देखिए यहाँ पे मैंने 2 पावर k प्लस 2 माइनस 1 को 2 पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर और 2 पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 को 2 पावर 2k माइनस 1 2 स्क्वायर लिया है। ये मैंने इसी वजह से लिया है कि आपकी जो सपोजिशन है ये आपने यूज़ करना है, और इसमें 3 पावर 2k माइनस 1 और 2 पावर 2k माइनस 1 है। सो यहाँ पे भी मैंने वो 3 पावर 2k माइनस 1 और 2 पावर 2k माइनस 1 बनाना है। फिर ये 9 इसको 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख ले इसी तरह। तो अब देखिए इस सारे एक्सप्रेशन से यही आ रहा है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस, 5 मल्टीप्लाइड बाई दिस। सो इस टर्म में तो 5 फैक्टर है, मल्टीप्लिकेशन में मौजूद है, क्लियर कट आप देख सकते हैं। लेकिन इसी टर्म में आपका ये इन्वॉल्व है, और ये चीज़ सपोजिशन में तुमने मान लिया है कि इसका 5 एज अ फैक्टर है। आप सपोजिशन में देख सकते हैं कि इसी चीज़ का 5 एज अ फैक्टर है, इट इज़ फ्रॉम द सपोजिशन। तो इसमें भी 5 एज अ प्रोडक्ट इन्वॉल्व है और इसमें भी 5 एज अ प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। सो दोनों से 5 एज अ प्रोडक्ट आप कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो इट मीन्स दैट आपका गिवन जो ये था n इक्वल टू k प्लस 1 का जो रिजल्ट था उनमें 5 कॉमन है, तो इट मीन्स दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ 5। अगर ये 5 का फैक्टर है तो आपका रिजल्ट ट्रू हो गया फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। सो इट मीन्स दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इंटीजर। सो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में रिमेनिंग दो जो क्वेश्चंस आपकी एक्सेलरेटेड कोर्स में इन्वॉल्व है वो है पार्ट नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका असाइनमेंट है, 13 दिसंबर पे आप लोगों ने सबमिट करना है। अगर आप सबमिट ना कर सकें तो देन यू विल स्टे इन द कॉलेज फॉर द रेस्ट ऑफ द ओकेजन्स। ये बात याद रख लें। सो प्लीज़ डू इट एंड सबमिट इट ऑन 13 दिसंबर 2020। थैंक यू।